Hello my dear students, today we will discuss about the sulfur cycle. In the sulfur cycle, this type of cycles are gaseous as well as sedimentary cycle. The sedimentary sulfur comes from the weathering of rocks, runoff and decomposition of the organic matter. Gaseous sulfur are from decomposition of organic matter, evaporation of oceans and volcanic eruption. A significant proportion of the sulfur releases to the atmosphere is a byproduct of burning of fossil fuels. Fossil fuels क्या होते हैं? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जमीन में बहुत सालों से दबा होता है तो प्रेस होने के कारण वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी बर्निंग से भी सल्फर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। सल्फर एंटर्स द एटमॉस्फेयर मोस्टली एज हाइड्रोजन सल्फाइड विच क्विकली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। Here sulfur dioxide react with moisture in the atmosphere to form the sulfuric acid carried to earth in the precipitation. Means जब बरसात होती है तो जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी सल्फर प्रेजेंट होती है वो प्रेसिपिटेशन से नीचे आ जाती है और ये ही सल्फर है जो है एसिडिक रेन का एक कारण हो सकती है। Plant incorporate it into sulfur bearing amino acids. Consumption, excretion and death carry sulfur back to the soil and aquatic sediments where bacteria release it into inorganic forms. This is the pictorial form of cycling process when sulfur dioxide is recycled into the atmosphere and then back to the earth and then back to the atmosphere. Here SO2 from combustion of fossil fuels, this come to the atmosphere, sulfates in atmosphere, here these are present in the atmosphere, and sulfur in living organism. After this, when releases to the atmosphere, acid precipitation take place. Precipitation means बरसात जब होती है तो ये जो सारी एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड है ये सारी की सारी बरसात से नीचे आ जाती है, पानी में चली जाती है और ये सॉइल में चली जाती है। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये सी फ्लोर पे जमा हो जाती है। सल्फर ये जो फॉसिल फ्यूल से भी रिलीज होती है जो सेडिमेंट्स में है, माइनिंग से वो फिर से बाहर आ जाती है। तो इस तरह से सल्फर की साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है और ये जो सल्फर है ये कुछ टाइम तक सेडिमेंट्स में रहती है, रॉक्स में रहती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज इट कम बैक टू द एटमॉस्फेयर एंड देन बैक टू द ocean or back to the earth. This is the diagrammatic representation. Here sulfate are present in the atmosphere and this is elemental sulfur, then these are the sulfate also. This is hydrogen sulfide and metal sulfide decomposite, ये होते रहते हैं डिपोजिट्स, एंड देन ऑर्गेनिक मटेरियल में भी सल्फर प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से ये डायरेक्टली भी जो है सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड डायरेक्टली भी सल्फेट में कन्वर्ट होता रहता है और इस तरह से एक साइकिल जो है साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस साइकिल। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉस्फोरस इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। दिस फॉस्फोरस इज present in ATP. There is triple bond which help in ATP is adeno triphosphate. Triphosphate, when one bond of phosphorus is
break down, then it form adeno-diphosphate, and when other bond is break, then it forms the adeno AMP is monophosphate. Important component of the nucleic acid: cell membrane, teeth and bones. This cycle is interesting because unlike the previous cycles, it lacks an atmospheric component, and the major reservoir is sedimentary rock in the earth crust. ये जो साइकिल है, इसने बताया कि ये जो है ये गैसियस फॉर्म में नहीं आती है। फॉस्फोरस जो है वो अर्थ क्रस्ट में रहती है या ऑर्गेनिजम्स में रहती है, लेकिन ये जो साइकिल एटमॉस्फेयर में यानी कि गैसियस फॉर्म में नहीं आती, ये सेडिमेंटरी रॉक्स में रहती है। फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल as dihydrogenophosphate or hydrogenophosphate, and it is then passed to animals, that is herbivores, and then to the carnivores, because herbivores are eaten by the carnivores. It is eventually returned to the soil, rivers and oceans as animal excretion or through decomposition after death or decay. It come back to the earth crust. This is the pictorial form of phosphorus cycle. When there is some animal जो है एक्सक्रीट करते हैं, डिकम्पोजिशन से वो अर्थ क्रस्ट में चली जाती है, लीकिंग से फिर ये वाटर बॉडीज तक भी चली जाती है, और इस तरह से जो है इसका साइक्लिंग प्रोसेस चलता रहता है फॉस्फोरस का। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉस्फोरस साइकिल। हियर रॉक और सॉइल में जो फॉस्फोरस होती है ये रन ऑफ होती है लेक एंड स्ट्रीम से, फिर ये बनती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देन प्लांट जो है वो इसको यूज कर लेते हैं बाय एब्जॉर्प्शन द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रूट्स बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, एंड देन दे फॉर्म द अदर एक्टिविटी फॉर्म्स ATP is adenosine triphosphate, 3 phosphate bond are there, and when this ATP break down, then ADP is formed, and when ADP is break down, then AMP is formed. Adenosine monophosphate, adenosine diphosphate, adenosine triphosphate, यानी कि इसमें ATP में एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है? फॉस्फेट से, और जब फॉस्फोरस का जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। जबकि फॉर्मेशन भी होती है, और फॉर्मेशन कैसे होती है? AMP से बनता है। AMP में जब फॉस्फोरस ऐड होती है तो वो बनता है ADP, और ADP में जब एक और बॉन्ड ऐड होता है, एक और फॉस्फोरस ऐड होता है तो बनता है ATP, और डीकम्पोजिशन से ये दोबारा से अर्थ क्रस्ट में चली जाती है। तो इस तरह से इसकी साइक्लिंग प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। बायोकेमिकल साइकिल्स आर इंटरकनेक्टेड, ऑल दीज साइकिल्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। द न्यूट्रिएंट्स दैट साइकिल आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। The stoichiometric relationship among various elements involved in the plant processes related to carbon uptake and plant growth have an important influence on the cycling of nutrient in the ecosystem. कैसे? क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो अर्थ क्रस्ट से कहीं पर भी जब प्लांट ग्रो करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करे जाते हैं, जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से
वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है बाय द रूट्स। अब जैसे ही रूट्स उनको एब्जॉर्ब करती हैं तो जाइलम चैनल्स के थ्रू जाते हैं, जहाँ भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स में वहाँ पे जाते रहते हैं। तो अब प्लांट्स जो हैं उनको हर्बीवोरी जो है वो ईट करते हैं, यानी कि हर्बीवोरी उनको प्लांट्स को खाते हैं, जिससे वो हर्बीवोर्स में चले जाते हैं। और बहुत सारे हर्बीवोरी जो होते हैं उनको कौन खाता है? कार्निवोर्स। तो कार्निवोरी जब उनको खाते हैं तो वो जो है मटेरियल जितने भी उनको ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। और जब वो एक्सक्रीट आउट करते हैं तो वो मटेरियल वापस भी जितने रिक्वायरमेंट होती है उतने जो है वापस वो एक्सक्रीट करते हैं, जितना यूज़ करना होता है उतना यूज़ कर लेते हैं एक्सक्रीशन से। और बाकी जो है उनकी डेथ और डिके के बाद भी वो न्यूट्रिएंट सारे के सारे दोबारा से अर्थ क्रस्ट में आ जाते हैं। तो रिसाइकलिंग होती रहती है। इंटर कनेक्शन ऑफ द डिफरेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल में ऑलवेज लीड टू द इक्विलिब्रियम स्टेट विद इन द बायोस्फीयर। तो इस तरह से क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो है और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्रोसेस में चलते रहते हैं। एनर्जी फ्लो कैसे होता है इकोसिस्टम में? एनर्जी इज वेरी मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन द एवरी सिंगल इवेंट इन द यूनिवर्स फ्रॉम द ह्यूमन टू फोटॉन्स। मतलब हर ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का फ्लो होता ही रहता है, क्योंकि एनर्जी के बिना कुछ काम हो ही नहीं सकता। तो एनर्जी इज एवरीवेयर एंड एनर्जी नेवर अपीयर्स फ्रॉम और डिसअपीयर इनटू नथिंग। ना तो आपको पता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी जो है किसी में ना तो बदल सकती है और ना किसी चीज़ को बना सकती है, बन भी नहीं सकती। तो एनर्जी कैन ऑलवेज बी काउंटेड फॉर कि कितनी एनर्जी किसी चीज़ में लगी है। एनर्जी को हम जो है काम में यूज़ करते हैं और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थ इज एन ओपन सिस्टम। फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट द अर्थ मस्ट कॉन्स्टेंटली रिसीव इनपुट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। जितनी भी एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? हमारे सन से। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, और इससे पहले जितने भी चैप्टर्स आए हैं जिसमें एनर्जी की बात हुई है, तो मैंने हर एक लेक्चर में आपको बताया है कि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कहाँ से आती है? सारी की सारी एनर्जी सन से आती है। तो सन एंड मेक अप आउटपुट्स ऑफ द हीट एनर्जी। तो जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं एनर्जी की बेसिस पे होती हैं। एनर्जी फ्रॉम द सन मेंटेन्स ऑल ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस इन द अर्थ इकोसिस्टम। अर्थ इकोसिस्टम पे जितने काम होते हैं वो सभी के सभी एनर्जी से होते हैं। एंड ओनली 50% ऑफ द सनलाइट रीचिंग द अर्थ अपर एटमॉस्फेयर टू अर्थ सरफेस एंड हीट from the earth is constantly rising and passing to outer space। जितनी एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर को हीट करती रहती है और वो पास होती रहती है स्पेस में। ये हमारा एनर्जी कंसेप्ट है, क्योंकि एनर्जी जो है सारी जितनी भी एनर्जी आती है वो एब्जॉर्ब की जाती है और जितनी रिफ्लेक्ट होती है वो कोई ना कोई काम करके जाती है। तो इनकमिंग और आउटगोइंग का ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। इन एवरी इकोसिस्टम द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सनलाइट और सोलर रेडिएशंस। लाइट एनर्जी एंटर्स द इकोसिस्टम व्हेन इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, बिकॉज प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर। दीज कैन यूज द सन एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। It is the
passed through the ecosystem as food plants and for animals that consume each other. देन एनर्जी जो है वो पास होती रहती है। एनर्जी का एक लीनमैन का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने पहले भी बताया था कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज रेसेस टू द नेक्स्ट लेवल। 10% जो है हर ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी जो है अगले ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचती है, जबकि 90% ऑफ एनर्जी जो ली जाती है वो हर प्रोसेस में यूज हो जाती है, लाइक इन रेस्पिरेशन एंड अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसफर्ड थ्रू द ecosystem in this way is eventually converted into heat, and this heat, which is exactly equivalent to the solar input, finally leaves the ecosystem and is lost in the space. This is the solar energy. एनर्जी का इनपुट होता है एनर्जी यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। आपको पता है, सबको पता है कि एनर्जी जो है वो ग्रीन प्लांट ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑटोट्रोप्स हैं और वो अपनी एनर्जी सन की एनर्जी से अपना फूड तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या है, फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन होगी यहाँ पे। ये कहाँ हो रखा है, इकोसिस्टम में, और यहाँ पे एनर्जी लॉस्ट इन द रेस्पिरेशन, किस फॉर्म में, हीट, और जो एनर्जी है वो आउटपुट ही। आउटपुट भी क्या होता है, एनर्जी का ही आउटपुट होता है अगर नेक्स्ट लेवल पे ट्रैवल करती है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एनर्जी जो है दोबारा से रिलीज होती रहती है। ऑल एनर्जी आर कंट्रोल्ड बाय टू वेरी जनरल लॉज, टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट वन इज state that the energy can be transformed from one form to another but can never be created and nor destroyed. This is the first law of thermodynamics. क्या कहता है कि एनर्जी जो है वो कभी भी ना तो बनाई जा सकती है और ना उसको ख़त्म किया जा सकता है, उसको सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जाने के लिए, ठीक है। एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट ईच टाइम एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इट टेंड्स टू गो टू फ्रॉम ए मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसंट्रेटेड फॉर्म टू ए लेस ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर डिस्पर्स फॉर्म। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं डिफ्यूज़न का, तो डिफ्यूज़न में क्या है, जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होती है वहाँ से मॉलिक्यूल जाते हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसी तरह सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो एनर्जी है आप उसको स्टोर करके, आप उसको प्रेस करके नहीं रख सकते, वो ट्राई करती है जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से लेस कंसंट्रेशन की तरफ डिस्पर्स होती रहती है। थ्रू this process food energy flow in ecosystem and two major food chains are, one is grazing food chain, ये हम कर चुके हैं, फूड चेन्स के बारे में हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, इस in a grazing food chain where energy is passed through living organism and is represented as plant to animal and then back further to the top carnivores, and these are also animal. Detritus food chain, इसमें क्या होता है, where energy is passed from dead organism or organic matter to the decomposers and is represented as dead matter to decomposers. जो पहली चेन है इसमें प्लांट ने सन से जो है वो ली थी ही एनर्जी, और उसने ऑटोट्रोप्स हैं ये प्लांट्स, तो इन्होंने अपना फूड तैयार किया, और फिर एनिमल्स जो हैं उनको एनिमल टू एनिमल ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती चली गई। जबकि इन केस ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, तो उनको क्या डीकम्पोजर्स यूज़ कर सकते हैं और वो भी इनकी एनर्जी को यूज़ करते हैं।
ये ग्रेजिंग फूड और वेब और ये है डेट्रिटियल फूड वेब। दो तरह के फूड वेब इसमें दिखा दिए हैं, ये मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ। तो जो ग्रेजिंग वाला है इसमें आपको दिखाई दे रहा है एनर्जी जो है सन से एंटर करती है, प्रोड्यूसर जो है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उसी एनर्जी को हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और डीकम्पोजर्स जो है इस्तेमाल करते रहते हैं। और एनर्जी का लॉस जो है हर एक लेवल पे एनर्जी लॉस होता रहता है। इसी तरह से डेट्रिटस फूड चेन में भी क्या है कि एनर्जी तो सन से ही आती है, यहाँ प्रोड्यूसर्स होते हैं और जब तो वो प्रोड्यूसर्स गल सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो डीकम्पोजर्स उनको इस्तेमाल करते हैं और देन एनर्जी का आउटपुट ऐसे होता रहता है। डीकम्पोजर्स जो हैं चाहे कोई भी तरह की किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्रोड्यूसर्स जो गल सड़ जाते हैं, चाहे वो एनिमल्स गल सड़ जाते हैं, उनका इस्तेमाल डीकम्पोजर्स करते रहते हैं। इन इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म that obtain food from plant by the same number of steps are said to be belong to the same trophic level। ये trophic level का concept मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। Green plants that occupy the first trophic level, herbivores are in the second trophic level, carnivores are in the third trophic level, tertiary consumers are in fourth trophic level, and decomposers can belong to any trophic level depending on their food source। यानी कि अगर डीकम्पोजर्स है, सपोज प्लांट गल सड़ जाते हैं तो डीकम्पोजर्स जो है उनको भी डीकम्पोज करेंगे। अगर ये सेकंड लेवल हर्बीवोर्स जो है वो उनकी डेथ हो जाती है तो डीकम्पोजर्स उनको भी यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ से अगर पहले पे आते हैं तो वो दूसरे लेवल पे भी आ सकते हैं, यहाँ इसको करते हैं तो वो तीसरे लेवल पे भी आ सकते हैं, इनको करते हैं तो वो चौथे लेवल पे भी आ सकते हैं। तो डिपेंड्स। ये फूड चेन आप पहले कर चुके हैं, टेरेस्ट्रियल फूड चेन भी आप कर चुके हैं, मैराइन फूड चेन्स भी आप कर चुके हैं। तो कैसे इनमें एनर्जी का फ्लो होता है ये आपने देखा है। प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि एनर्जी को एंट्रैप करते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड देन क्वार्टनरी कंज्यूमर्स, ये जो है सारे के सारे एनर्जी को एंट्रैप करते हैं और ट्रांसफर करते हैं टू द नेक्स्ट लेवल। और एक लेवल से दूसरे लेवल पे जो एनर्जी है वो लॉस होता रहता है। Pyramid of energy shows the flow of energy in the trophic levels. It is always upright। देखो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा अपराइट होता है, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फ्लो मैंने पहले भी बताया कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, यानी कि अगर एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होता है तो वो सिर्फ अपराइट पिरामिड ही फॉर्म करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा पिरामिड फ्लो नहीं बन सकता। जबकि पिरामिड ऑफ नंबर जो है इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप जो है कौन से नंबर किस पॉपुलेशन में स्टडी कर रहे हो। The thermodynamics about transformation or transfer of energy. There can never be the same amount or more energy flowing or being passed from a lower trophic level to the next upper trophic level. This is the energy consumption pyramid. This is upright pyramid and always it form the upright pyramid, because if we consider that producer produce 1000 kilocalorie of energy, then up to the consumer this energy is lost. I think 90% of energy is lost according to the Lindeman's law, and only 100 kilocalorie of energy is transferred from producer to the primary consumers, and then next to the secondary consumers this energy is also 90% of energy is lost and only 10% reaches to the next level, and this is also only 10 kilocalorie. And next to the top carnivore level, this energy here also used by the these organism in the process of respiration and other activities, and this energy this is only 1 kilocalorie, because here also 90% of the energy is lost during the processes and only 10% of energy is reduced to the next level. Human implication to the water cycle, biogeocycle, energy flow,
what are the implications here? ह्यूमन डिस्टर्बेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट साइकिल, क्या करते हैं ह्यूमन? न्यूट्रिएंट साइकिल को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं. इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड रेट ऑफ द न्यूट्रिएंट साइकिल, ह्यूमन कर सकते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड डिक्रीज द रेट ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल. रिडक्शन इन वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन रेट ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल. रिडक्शन in volume and rate of nutrient cycle, addition of synthetic material to the nutrient cycle, collapse of the nutrient cycle. तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ह्यूमन कर सकता है और ह्यूमन कर भी रहा है डिस्टर्बेंस करके. रोल ऑफ वाटर इन बायोजियोकेमिकल साइकिल. व्हाट इज़ द रोल? वाटर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक्टिविटी के लिए, बिकॉज इट डिजॉल्व न्यूट्रिएंट are carried from the earth's surface either into the ground or into the oceans. Next is atmospheric nutrient are often brought to the earth's surface in rainwater. Next one is nutrient held in rocks are gradually released by the weathering accomplished by rain, by erosion through flowing water and by freezing and defrosting ice. तो ये वाटर जो है वो आता रहता है. उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिएंट आर यूजुअली डिजॉल्व इन वाटर व्हेन दे आर एब्जॉर्ब इनटू द रूट ऑफ द प्लांट्स. तो वाटर का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. वाटर इज क्रिटिकल इन accomplishing the various chemical changes that nutrient undertake as they pass through the biophase of their cycle. Next, functions of energy flow in facilitating biogeochemical cycle. क्या फंक्शन एनर्जी के? Keep the earth warm enough so that chemical reaction are possible. एनर्जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वाटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन चीज़ों को हम हार्म ना करें. मेक इट पॉसिबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कैरी ऑन देयर वाइटल प्रोसेस. जो भी ज़रूरी प्रोसेसेस होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं? सिर्फ एनर्जी के थ्रू. एनर्जी के बिना कोई भी वाइटल प्रोसेस नहीं हो सकती. एनर्जी इज नीडेड बाय द प्लांट टू पंप वाटर एंड कॉन्सिक्वेंटली टू एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. ठीक है. नेक्स्ट इज बैक्टीरिया रिक्वायर considerable amount of energy to carry out their vital processes and thereby change nutrient from one form to the another. So यहाँ पे भी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको समझ में आ गया होगा. ह्यूमन इम्प्लीकेशन टू एनर्जी फ्लो. क्या करते हैं यहाँ पे ह्यूमन? The effect of humans on net primary productivity is generally to reduce the productivity of wild system and to increase that of cultivated system. हम क्या करते हैं ह्यूमंस? हम सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिज्म, जो अदर ऑर्गेनिज्म है जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका, वाइल्ड एनिमल्स का हम कोई फ़ायदा नहीं देखते हैं. तो इसी कारण से हम क्या करते जा रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो हम फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी, वाइल्ड लाइफ की प्रोडक्टिविटी हम घटाते जाते हैं और जो कल्टीवेटेड है उसकी हम बढ़ाते जाते हैं. नेक्स्ट इज एनर्जी इंटेंसिफिकेशन इन क्रॉपिंग हैज़ बीन accompanied by a substitution of fossil fuel for human and animal power. तो जितनी भी एनर्जी है वो हम अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं. And in forest system there is a varying relationship between crop maturity and economic return. So thank you guys, it was very nice lecture. You must read it.